Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your Wordsworth English Reader book as I'm going to continue with lesson 9, The Magic Sheep. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn the page to page number 84. As I'll be continuing with lesson 9, The Magic Sheep. Student, first of all, I'll be revising all the word meanings of this lesson. Then I'll be reading this lesson and continue with the explanation. In my last video, I had explained till the third paragraph of page 85. And today, I'll be again explaining the lesson to you. So first of all, let's revise the word meanings of this lesson and the meaning of phrases. The first word is disappear, which means went missing. The second word is sparkling, which means bright and shiny. The third word is puzzled. Puzzled means confused. The fourth word is utter, and utter means complete. The fifth word is astonishment, which means surprise. The sixth word is ecstatic, which means overjoyed. The seventh word is awful, and awful means horrible. The eighth word is litter, and litter means trash. The ninth word is dismay, and dismay means fear. And the 10th word is spoil. Spoil means to destroy. Then, besides the word meaning, there are two phrases also there in the lesson. Let's revise them. The first one is came to life. Came to life means to become real. And then the second one is was to blame. That means to be held responsible. Now students, I'm going to read this lesson. Please listen to me carefully so that you can also read the lesson correctly with the correct pronunciations. Lesson 9, The Magic Sheep. Diya, Rohit, Tina and Krish were playing in the park with the ball. Suddenly, Krish threw the ball too high and it disappeared behind the bushes. Rohit and Tina ran to the bush to find the ball. They found a big white sheet lying on the ground. A box of bright sparkling colors was also there. Rohit and Tina were very surprised. Tina was scared to touch the objects, but Rohit took the sheet and the box of colors to their friends. Everyone was puzzled to see those things at the park. All of them started talking about the harm in touching strange objects. Meanwhile, Diya took a color and drew a flower on the sheet. To the utter astonishment of the children, as soon as Diya finished the drawing, the flower came to life and jumped out of the sheet. Diya exclaimed, "Wow, a magic sheet!" The children became very excited. They all started drawing different figures on the sheet. Small hills, trees, birds, flowers, grasses, butterflies, fountains, etc. All these figures came to life and jumped out of the sheet. Soon the park became green and colorful. The children were ecstatic. They then drew balloons and toys and started playing with them. After some time, the children became hungry. So they drew chocolates, toffees, chips, cold drinks, ice cream, sandwiches, pizza,
and so on. When these objects came to life, the children quickly ate them. However, they left the wrappers of the food item in the park only. But something awful started happening. Around every piece of litter, the park turned grey, and this greyness started spreading quickly everywhere. To the trees, small hills, flowers, grasses, and fountains. To the dismay of the children, the colorful park had started turning grey. The children realized that the litter that they had thrown in the park was to blame for all the greyness. They quickly ran through the park to pick up all the garbage. The children didn't leave a single piece of litter in the park. They enjoyed playing happily in the wonderful green park full of colorful birds and flowers. They left the park in the evening but forgot the magic sheet. The children never saw that magic sheet and those sparkling colors in the park again. But now, every time they go for a picnic or to the park, they remember that day and are quick to pick up any litter. They even tell their other friends that anything littered around us can spoil the beauty of nature. So students, this was the reading of the lesson. Now I'm going to explain the lesson. Diya, Rohit, Tina and Krish were playing in the park with a ball. बेटा 4 friends थे जिनका नाम क्या था? दिया, रोहित, टीना and Krish. और ये चारों friends they were playing in the park with a ball. किससे बेटा play कर रहे थे? With a ball. Suddenly, Krish threw the ball too high. तभी एकदम से Krish ने 4 friends में से एक friend था Krish, उसने बॉल इतनी हाई फेंकी and it disappeared behind the bushes. कि वो बॉल इतनी ऊपर से नीचे गिरी तो वो कहीं bushes मतलब झाड़ियों के बीच में गायब हो गई. Disappeared, गायब हो जाना, went missing. Rohit and Tina ran to the bush to find the ball. रोहित और टीना दोनों भाग के गए bushes के पास to find that ball because they wanted to play. अब ball ही अगर disappear हो जाएगी then how will they play? So Rohit and Tina they both ran to the bushes to find the ball. Then near the bushes what did they find? They found a big white sheet lying on the ground. उनको वहां पे एक बड़ी white sheet ground पे मिली. कहाँ पे? Near the bushes. A box of bright sparkling colors was also there. और उसी शीट के पास में बेटा एक बॉक्स ऑफ कलर्स है ना, जिसमें ब्राइट स्पार्कलिंग चमकीले कलर्स थे बॉक्स में. अ मैजिक शीट एंड अ बॉक्स ऑफ ब्राइट शाइनिंग कलर्स was also there near the bush. Rohit and Tina were very surprised. अब रोहित और टीना they had gone to search for the ball, but what did they see? They saw the magic sheet. They were very surprised. Tina was scared to touch the objects. अब टीना she was a smart girl, है ना? She didn't wanted to touch the objects which did not belong to her, है ना? हमको भी कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट अगर पड़ा है, अननोन ऑब्जेक्ट, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम नहीं जानते, वी शुड नॉट टच, है ना? तो टीना was scared. टीना को डर लग रहा था उस शीट को और कलर्स को छूने. बट रोहित he took the sheet and the box of color to their friends. बट रोहित ने वो शीट उठाई और कलर्स उठाए एंड उसको लेके कहाँ आया? अपने फ्रेंड्स के पास. फ्रेंड्स कौन कौन थे? दिया, रोहित, टीना एंड Krish. Fine. Everyone was puzzled to see those things at the park. अब जब चारों friends ने देखा कि white sheet और colors इनको मिले near the bush, so they were
puzzled, surprised. उनको बहुत सरप्राइज हो रहा था कि अरे पार्क में ये शीट और कलर्स कहाँ से आ गए, है ना. All of them started talking about the harm in touching strange objects. अब वो चारों फ्रेंड्स मिलके बात करने लग गए कि कोई भी स्ट्रेंज, है ना, अननोन ऑब्जेक्ट हो जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा, वो अब हमको अगर कहीं मिलता है तो हमको उसको नहीं टच करना चाहिए, है ना, बिकॉज इट कैन कॉज हार्म, हमको उससे नुकसान हो सकता है. Meanwhile, Diya took a color and drew a flower on the sheet. और ये चारों फ्रेंड्स जब डिस्कस कर ही रहे थे उसी समय, एट द सेम टाइम, मीनवाइल मीन्स एट द सेम टाइम, बात करते करते ही दिया, है ना, 4 फ्रेंड्स में से एक गर्ल थी, उसने एक कलर उठाया बॉक्स में से और शीट के ऊपर एक फ्लावर को ड्रॉ कर दिया. टू द अटर एस्टॉनिशमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. अब अटर एस्टॉनिशमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट सरप्राइज. बच्चे एकदम से पूरी तरह से सरप्राइज हो गए, है ना. तब बच्चों ने क्या देखा कि as soon as दिया फिनिश द ड्रॉइंग, जैसे ही दिया ने फ्लावर बनाया, ड्रॉइंग खत्म की, द फ्लावर केम टू लाइफ. वो फ्लावर जो शीट में बनाया था वो एकदम से रियल फ्लावर बन गया. एंड जम्प्ड आउट ऑफ द शीट. और उस फ्लावर ने शीट के अंदर से जंप लगाई. कहाँ जंप लगाई? बाहर पार्क में. दिया एक्सक्लेम्ड, वाओ अ मैजिक शीट. और दिया तब खुशी से जोर से चिल्लाई, वाओ अ मैजिक शीट. कि ये जो शीट जो उनको मिली थी वो एक मैजिक शीट थी, क्योंकि उसने जैसे ही एक फ्लावर ड्रॉ किया, क्या हो गया? फ्लावर थोड़ी ही देर में एकदम ड्राइंग खत्म होते ही फ्लावर रियल बन गया एंड जम्प्ड आउट इन दी पार्क. द चिल्ड्रन बिकेम वेरी एक्साइटेड. अब बेटा जो सारे बच्चे थे वो बहुत एक्साइटेड हो गए. दे ऑल स्टार्टेड ड्रॉइंग डिफरेंट फिगर्स ऑन द शीट. वो सारे बच्चे मिलके अलग अलग चीजें शीट पे ड्रॉ करने लगे. व्हाट डिड दे ड्रॉ, है ना, उन्होंने क्या क्या ड्रॉ किया बेटा? स्मॉल हिल्स, ट्रीज, बर्ड्स, फ्लावर्स, ग्रासेस, बटरफ्लाईज, फाउंटेन्स एसेट्रा, है ना. ये सारी चीजें बच्चों ने उस शीट पे ड्रॉ की. क्या क्या? स्मॉल हिल्स, छोटे छोटे पहाड़ी, है ना, ट्रीज पेड़, बर्ड्स चिड़िया, फ्लावर्स फूल, ग्रासेस घास एंड बटरफ्लाईज एंड फाउंटेन फव्वारे, सब ड्रॉ की. और क्योंकि वो मैजिक शीट थी, जो भी ड्रॉ कर रहे थे क्या हो रहा था? ऑल दीज फिगर्स केम टू लाइफ. वो सारे फिगर्स जो भी बच्चों ने ड्रॉ किए थे वो सारे रियल हो गए एंड जम्प्ड आउट ऑफ द शीट. और जम्प्ड आउट ऑफ द शीट करके वो सब कहाँ आ गए? पार्क में आ गए. Soon the park became green and colorful. अब वो सारी चीजों के पार्क में आते ही पार्क कैसा बन गया? ग्रीन एंड कलरफुल. क्योंकि पार्क में क्या क्या चीजें रियल में आ गई थी, है ना. स्मॉल हिल्स, ट्रीज, बर्ड्स, फ्लावर्स, ग्रासेस, बटरफ्लाईज एंड फाउंटेन्स. तो अब इतनी सारी चीजें पार्क में आ जाएंगी रियल, तो पार्क तो बहुत ब्यूटीफुल और कलरफुल हो ही जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, है ना. द चिल्ड्रन वर एक्सटैटिक. अब ये सब देख के जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए. द चिल्ड्रन वर ओवरजॉयड. एक्सटैटिक मीन्स ओवरजॉयड, बहुत ज्यादा खुश हो जाने को क्या बोलते हैं? एक्सटैटिक. बिकॉज उन्होंने जो जो चीजें ड्रॉ की थी वो सारी चीजें रियल बन के पार्क में जम्प कर गई थी. दे देन ड्रू बलून्स एंड टॉयज. उसके बाद वो बच्चों ने क्या ड्रॉ किया? बलून्स ड्रॉ किए, है ना, और टॉयज ड्रॉ किए. फिर थोड़ी देर में बलून्स और टॉयज भी रियल होके शीट में से बाहर आ गए. सो व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू? द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग विद द बलून्स एंड द टॉयज. आफ्टर सम टाइम द चिल्ड्रन बिकेम हंग्री. अब थोड़ी देर के बाद बच्चों को भूख लग गई, है ना. सो दे ड्रू चॉकलेट्स, टॉफीज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, सैंडविचेस, पिज्जाज एंड सो ऑन. अब जब खेल रहे थे बच्चे बलून और टॉयज के संग, खेलते खेलते उनको भूख लग गई. दे ऑल बिकेम हंग्री. तो उन्होंने मैजिक शीट पे क्या क्या ड्रॉ किया? चॉकलेट्स, टॉफीज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, सैंडविचेस, पिज्जाज एंड सो ऑन. बहुत सारी चीजें. अब उनके ड्रॉ करते ही क्या हुआ? ये सारी चीजें भी रियल हो गई, है ना. And when these objects came to life, the children quickly ate them. और जब ये सारी खाने पीने की चीजें
रियल हो गई, लाइफ में आ गई, तो बच्चों ने क्या किया, इन सारी चीजों को फटाफट खा लिया। However, लेकिन they left the wrappers of the food items in the park only. अब खाने के बाद उन्होंने चॉकलेट के रैपर्स, टॉफी के रैपर्स, चिप्स के रैपर्स, है ना, सारे चीजों के रैपर्स, नैपकिन सब कहाँ छोड़ दिए, पार्क में ही इधर उधर फेंक दिए। बट सम फुल, है ना, जितने भी खाने पीने चीजों के रैपर्स थे वो सब फेंक दिए। बट समथिंग ऑफुल स्टार्टेड हैपनिंग, और जैसे ही बच्चों ने रैपर्स पार्क में फेंके, क्या हो गया, कुछ बहुत खराब पार्क में होने लगा। Around every piece of litter, the park turned grey, and this greyness started spreading quickly everywhere. और बच्चों का जो एक एक रैपर था, वो उसने क्या किया, जहां जहां फेंका था उसने पार्क को ग्रे कलर का, है ना, कहाँ पार्क कितना ब्यूटीफुल ग्रीन एंड कलरफुल हुआ था, और रैपर फेंकते ही पार्क की एक एक चीज ग्रे होने लग गई, है ना। और ग्रेनेस, वो जो ग्रेनेस थी, है ना, ग्रे कलर जानते हैं ना, वो जो ग्रे कलर था वो धीरे 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 पूरे पार्क में जल्दी 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 क्विकली स्प्रेड होने लग गया। जो एक एक लिटर, एक एक जो रैपर था, एक एक जो कचरा बच्चों ने फेंका था, उससे पूरे पार्क में धीरे धीरे क्विकली, है ना, बहुत स्पीड में स्टार्टेड स्प्रेडिंग क्विकली, वो ग्रेनेस बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होने लग गई। और क्या क्या पूरा जो ग्रीन और कलरफुल था वो सारी चीजें क्या हो गई, जल्दी से क्या टर्न हो गई, ग्रे। बहुत क्विकली वो सारी चीजें स्प्रेड हुई, है ना, धीरे धीरे नहीं, क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी, क्विकली मीन्स जल्दी जल्दी स्प्रेड होने लगी। और क्या क्या ग्रे हो गया, ट्रीज टू द ट्रीज, स्मॉल हिल्स, फ्लावर्स, ग्रासेस एंड फाउंटेन्स, वो सारी चीजें जो बच्चों ने ड्रॉ की थी और रियल लाइफ में पार्क में आ गई थी, वो सारी चीजें ग्रे होने लग गई। क्यों ग्रे होने लग गई, क्योंकि एक एक गंदगी, एक एक कूड़ा करकट जो बच्चों का रैपर था, लिटर था, गार्बेज था, उसने एक एक चीजों को ग्रे करना स्टार्ट कर दिया। और जो ग्रेनेस बहुत क्विकली स्प्रेड हो गई पूरे पार्क में, वो सारी चीजों में, है ना। जो अच्छी हिल्स थी वो ग्रे हो गई, ट्रीज जो ग्रीन थी वो ग्रे हो गई, ग्रासेस ग्रे हो गए, फ्लावर्स ग्रे हो गए, एंड फाउंटेन्स भी ग्रे हो गए, सब कुछ खराब हो गया, गंदा हो गया। टू द डिस्मे ऑफ द चिल्ड्रन, द कलरफुल पार्क हैड स्टार्टेड टर्निंग ग्रे। अब बच्चे तो ये सब देख के डर गए कि एकदम से जो पार्क इतना ग्रीन और कलरफुल था वो क्या हो रहा था, किस कलर का हो रहा था, ग्रीन एंड कलरफुल की जगह अब वो ग्रे कलर का हो रहा था। The children realized that the litter they had thrown in the park was to blame for all the grayness. अब बच्चों ने देखा तो वो तो डर गए, ये सारी चीजें तो जो इतनी सुंदर जिससे पार्क लग रहा था वो सारी चीजें तो अब ग्रे हो रही थी, है ना। तब बच्चों को रियलाइज हुआ, है ना, बच्चों को क्या रियलाइज हुआ कि उन्होंने जितना भी कूड़ा करकट पार्क में फेंका है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है इस सारी ग्रेनेस के लिए। जो पार्क ग्रीन और कलरफुल था वो पूरा पार्क अब किस कलर में हो गया है, ग्रे कलर में। और इसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, बच्चों ने जो कूड़ा करकट, गार्बेज, लिटर इधर उधर फेंका था चीजें खा के, उसने पूरे पार्क की ब्यूटी, जो सुंदरता है, वो खत्म कर दी। और पार्क की सारी चीजें किस कलर की होने लग गई, ग्रे। They quickly ran through the park to pick up all the garbage. अब all 4 children, क्या नाम था बेटा 4 चिल्ड्रन का, है ना, दिया, रोहित, टीना एंड क्रिश, वो चारों दौड़ने लग गए पार्क में। क्या करने के लिए, कि जितना भी लिटर और गार्बेज उन्होंने उठाया है उसको उठाने के लिए। चारों दौड़ने लग गए, है ना। और उन्होंने फटाफट दे स्टार्टेड पिकिंग इट फ्रॉम ऑल द प्लेसेस वेयर दे आर थ्रोन। The children didn't leave a single piece of litter in the park. अब बच्चों ने एक भी कहीं पे टुकड़ा गंदगी का, कूड़ा करकट का उस पार्क में नहीं रहने दिया। उन्होंने सारी चीजें, जितने भी रैपर्स, लिटर, कूड़ा करकट फेंका था, वो सारी चीजें उन्होंने उठा ली। And then what did they see? They enjoyed playing happily in the wonderful green park
full of colorful birds and flowers. अब बच्चों के सारा गार्बेज, सारा लिटर उठाने के बाद से वो पार्क फिर से क्या हो गया, अच्छा ग्रीन पार्क बन गया। और उसमें कौन आने लग गई जब सारा कूड़ा करकट उठ गया? तो हाँ, उसमें बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज भी आने लग गई फ्लावर्स के ऊपर। सो कलरफुल पार्क हो गया, ग्रीन ट्रीज, कलरफुल बर्ड्स, है ना। एंड दे लेफ्ट द पार्क इन द इवनिंग बट फॉरगॉट द मैजिक शीट। अब बच्चों ने, शाम होती है तो ऑब्वियसली बच्चे घर जाते हैं, बिकॉज एक टाइम है खेलने का। देन पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग वरीड कि बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया, है ना। तो जब भी अंधेरा होने लगता है आप लोग अपने घर को जाने लगते हो। तो सेम वे, है ना, इवनिंग टाइम हो गया, बच्चों ने सारा लिटर उठा लिया एंड देन दे प्लेड हैप्पीली इन द पार्क एंड दे एंजॉयड द कलरफुल ग्रीन ट्रीज एंड द बर्ड्स इन द पार्क। और बच्चे सब अपने अपने घर शाम को गए, बट वो एक चीज तो पार्क से ले जाना ही भूल गए। दैट वॉज द मैजिक शीट। वो मैजिक शीट जिसमें कोई भी चीज ड्रॉ करते ही वो क्या हो जा रही थी, रियल हो जा रही थी और जंप कर रही थी। तो बच्चे वो मैजिक शीट तो पार्क में ही भूल गए, है ना। दे फॉरगॉट द मैजिक शीट इन द पार्क। The children never saw that magic sheet and those sparkling colors in the park again. And बेटा नेक्स्ट टाइम जब बच्चे आए तो उन्होंने देखा कि वो मैजिक शीट भी वहां नहीं थी और उसके साथ जो स्पार्कलिंग, चमकीले, ब्राइट एंड स्पार्कलिंग शाइनिंग कलर्स थे वो भी नहीं थे। उसके बाद बच्चों ने वो मैजिक शीट और स्पार्कलिंग कलर्स कभी भी पार्क में नहीं देखे। बट नाउ every time they go for a picnic or to the park, they remember that day and are quick to pick up any litter. बट उस दिन बच्चों ने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा था कि उनको गंदगी बिल्कुल भी नहीं फैलानी है पार्क में, क्योंकि उनके गार्बेज के कारण से क्या हुआ था, उनके लिटर के कारण से जो पूरा ग्रीन एंड कलरफुल पार्क था वो किस कलर में कन्वर्ट हो गया था, ग्रे कलर में। तो बच्चों ने उस दिन से रियलाइज कर लिया था और उनको याद था कि अब वो कभी भी पार्क में जाएंगे तो वो पार्क में जितना भी लिटर फेंका हुआ है उसको उठा के डाल देंगे डस्टबिन में। वो लिटर, कूड़ा करकट कभी भी पार्क में नहीं फेंकेंगे। They even tell their other friends that anything littered around us can spoil the beauty of nature. और वो बच्चे इतने अलर्ट हो गए थे कि वो बच्चे, है ना, दिया, रोहित, टीना एंड क्रिश, वो बच्चे दूसरों को भी, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि कोई भी चीज, अगर हम कोई भी चीज के रैपर्स, लिटर, कूड़ा करकट इधर उधर फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, जो नेचर की ब्यूटी है ना, जो ब्यूटी ऑफ द नेचर है वो पूरी खराब हो जाएगी, है ना। जो नेचर और खराब गंदी जगह में तो बर्ड्स भी नहीं आएंगे, फ्लावर्स भी नहीं ब्लूम करेंगे, ट्रीज भी नहीं ग्रीन होगी, तो कैसा लगेगा, पूरी गंदगी फैली होगी। वुड यू बी हैप्पी इन प्लेइंग अ dirty surrounding? No, nobody likes to play in the dirty surrounding. Everybody likes to visit a clean place with clean surroundings, है ना। So always remember कि आप कुछ भी खाते हो, you should always be very particular of not throwing the litter here and there around. Keep your surroundings and public places क्लीन, बिकॉज अगर आप अपनी सराउंडिंग और पब्लिक प्लेसेस क्लीन रखोगे तो आप ही का फायदा होगा। यू विल ओनली एंजॉय प्लेइंग इन दी पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स, गार्डन्स, एंड अगर आप उसमें पूरा ईटेबल्स के रैपर्स और सब कूड़ा करकट फेंकोगे तो वो पार्क की नेचुरल ब्यूटी तो स्पॉइल हो जाएगी। सो रिमेंबर चिल्ड्रन, कभी भी इधर उधर लिटर नहीं फेंकना, है ना। लाइक स्मॉल एग्जाम्पल, हम अपनी पेंसिल शार्पन करते हैं एंड उसका जो श्रेड्स होते हैं पेंसिल के, वी जस्ट ड्रॉप इट, है ना। घर में है तो हम घर में फेंक देंगे इधर उधर, क्या हुआ, कोई ना कोई तो साफ कर देगा। बट नो, अभी हमको स्मॉल एक बिगनिंग करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर होम ओनली। व्हेन यू कम टू स्कूल, लेट्स स्टार्ट विथ द क्लास ओनली। आप अपने घर में अगर क्लेanलीनेस की हैबिट इनकलकेट करेंगे, डेवलप करेंगे, तो बेटा आप कहीं भी जाएं, स्कूल में आए, कहीं भी आउटसाइड भी जाएंगे तो आप कभी भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। बट द ओनली थिंग इज कि हमको वो हैबिट डेवलप करनी है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कि आप घर में भी, जब स्मॉल एग्जाम्पल आई एम सेइंग, व्हेन यू शार्पन योर पेंसिल, प्लीज डू नॉट थ्रो द श्रेड्स ऑफ द पेंसिल हियर एंड देयर, प्लीज पिक देम अप। आप उसको कहीं भी शार्पन कीजिए, देन पिक इट अप
all the shreds and please throw them in the डस्टबिन. ऐसा नहीं कि आप इधर उधर कहीं भी छोड़ दो कि अरे होने दो गंदा. और इसी तरह से आप लोग पेपर स्टेयर करते हो, है ना, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल. प्लीज, आप नेचर को, पेपर आपको पता है ना, ट्रीज कटते हैं तो पेपर बनता है, तो प्लीज स्टॉप वेस्टिंग एंड थ्रोइंग पेपर्स अराउंड, है ना. यू ऑल आर इन द हैबिट ऑफ मेकिंग एरोप्लेन, पेपर का एरोप्लेन बनाया, उसको उड़ाया. प्लीज रिफ्रेन योर सेल्फ इन सब चीजों से. बेटा, अपनी जो हैबिट्स हैं उनको आप सुधारिए. डू नॉट वेस्ट वाटर, डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट वेस्ट पेजेस. तो हमारी छोटी छोटी हैबिट्स से हमारा ही उससे फायदा होगा, है ना. सो चिल्ड्रन, प्लीज रिमेंबर दैट डू नॉट लिटर अराउंड, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. और इसकी शुरुआत आप अपने होम से कीजिए. व्हेन यू कम टू स्कूल, आप लोग चॉकलेट्स, टॉफीज, बिस्किट्स जो भी खाते हो उसके रैपर्स इधर उधर कॉरिडोर्स में, क्लास में फेंक देते हो. क्लास में जो आपकी डेस्क होती हैं वो पूरे, इफ समबडी पीप्स, उसके अंदर पेपर्स, पेंसिल के श्रेड्स होते हैं, है ना. सो प्लीज बी पर्टिकुलर, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. आप अपने क्लास को क्लीन रखोगे, आप ही को अच्छा लगेगा. जस्ट इमेजिन, है ना, कुछ बच्चे च्युइंगम खाते हैं, दे पेस्ट इट इन दी डेस्क, एंड दूसरा बच्चा जब हाथ लगाता है तो इट कम्स इन दी हैंड. हाउ फिल्दी इट इज, है ना. कितने सारे उसके बैक्टीरिया जो च्युइंगम में लगे वो हमारे हाथ में लगते हैं, है ना. हम भी ऐसा करते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, कोई दूसरा करता है. तो अगर हम दूसरे के लिए करेंगे तो कल को हमारे साथ भी होगा. सो प्लीज, आप लोग जो है अपने पेंसिल के श्रेड्स हैं, टॉफीज, चॉकलेट्स के रैपर्स हैं, एंड इफ यू ईट अ च्युइंगम ऑल्सो, प्लीज इंश्योर दैट यू स्पिट इट इन दी डस्टबिन, नॉट हियर एंड देयर. यू ऑल हैव दी हैबिट कि कुछ भी खाया और उसको इधर उधर आपने स्प्लिट कर दिया. शूज में लग जाता है ना, हैंड्स में लग जाता है, नोटबुक्स के कवर्स पे लग जाता है. वी हैव सीन. सो प्लीज चिल्ड्रन, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. फाइन. आई होप सारे बच्चों को ये लेसन बेटा समझ में आ गया है, क्योंकि हमारा ही फैलाया हुआ कूड़ा करकट कचरा जो नेचर की ब्यूटी को स्पॉइल करता है. और अगर हम अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखेंगे तो क्या होगा, नेचर ऑटोमेटिकली ब्यूटिफुल एंड कलरफुल हो जाएगा. फाइन. नाउ वंस अगेन आई विल रीड दिस लेसन फॉर यू. लेसन 9, द मैजिक शीट. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. Diya, Rohit, Tina and Krish were playing in the park with a ball. Suddenly, Krish threw the ball too high and it disappeared behind the bushes. Rohit and Tina ran to the bush to find out the ball. They found a big white sheet lying on the ground. A box of bright sparkling colors was also there. Rohit and Tina were very surprised. Tina was scared to touch the objects, but Rohit took the sheet and the box of color to their friends. Everyone was puzzled to see those things at the park. All of them started talking about the harm in touching strange objects. Meanwhile, Diya took a color and drew a flower on the sheet. To the utter astonishment of the children, as soon as Diya finished the drawing, the flower came to life and jumped out of the sheet. Diya exclaimed, "Wow, a magic sheet!" The children became very excited. They all started drawing different figures on the sheet. Small hills, trees, birds, flowers, grasses, butterflies, fountains, etc. All these figures came to life and jumped out of the sheet. Soon, the park became green and colorful. The children were ecstatic. Then they drew balloons and toys and started playing with them. After some time, the children became hungry. So they drew chocolates, toffees, chips, cold drinks, ice creams, sandwiches, pizzas, and so on. When these objects came to life, the children quickly ate them. However, they left the wrappers of the food items in the park only. But something awful started happening. Around every piece of litter, the park turned grey, and this greyness started spreading quickly everywhere.
To the trees, small hills, flowers, grasses, and fountains. To the dismay of the children, the colorful park had started turning grey. The children realized that the litter that they had thrown in the park was to blame for all the greyness. They quickly ran through the park to pick up all the garbage. The children didn't leave a single piece of litter in the park. They enjoyed playing happily in the wonderful green park full of colorful birds and flowers. They left the park in the evening but forgot the magic sheet. The children never saw the magic sheet and those sparkling colors in the park again. But now, every time they go for a picnic or to park, they remember that day and are quick to pick up any litter. They even tell their other friends that anything littered around us can spoil the beauty of nature. So students, we have seen that in this lesson at the end how the four friends realized कि हम कुछ भी लिटर इधर उधर करेंगे तो उससे ब्यूटी ऑफ नेचर स्पॉइल हो जाएगी. सो उन्होंने अब अपने फ्रेंड्स को भी बोल दिया और जहां भी वो लिटर देखते हैं दे आर क्विक इनफ टू पिक इट एंड डिस्पोज इट ऑफ प्रॉपर्ली. सो स्टूडेंट्स, what do we learn from this lesson? That we should keep our surroundings clean and we should not dirty the place by throwing the litter around. So students, that's all for today. Please do read this lesson and I hope all of you have written the word meanings and meaning of phrases in your English notebook. Now I'll be starting with the comprehension exercises in my next video. Thank you students. Have a good day ahead.